स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन का कुछ पार्ट पढ़ा था, जैसे पीपीएम है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, ये सब हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पहले डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। The ratio of number of moles of solute or the number of moles of solvent and sum of the number of moles present in solution is called mole fraction. It is denoted by chi, CHI. Now, let us suppose that number of moles of solute is equal to N and number of moles of solvent capital N. Therefore, total number of moles is equal to N upon N plus N. Therefore, mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total number of moles, that is equal to N upon N plus N. इसलिए chi solute is equal to N upon N plus N. Similarly, mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent divided by total number of moles is equal to N upon N plus N. अब इसे हम लोग हिंदी में सीखे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। रेशियो हमें देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, या रेशियो देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
Now let us suppose that number of moles of solute is equal to small n and number of moles of solvent is equal to capital N. Therefore, total number of moles present in solution is equal to n plus n. And mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total number of moles. That is, chi solute is equal to n upon n plus n. Similarly, mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent divided by total number of moles in solution. That is, chi solvent is equal to n upon n plus n. We know that n is equal to mass of solute divided by molecular mass of solute. W upon m c. Therefore, n is equal to W upon m. Similarly, n is equal to mass of solvent divided by molecular mass of solvent. Capital W by capital M. Therefore, n is equal to capital W by M. अब इसी चारों पॉइंट की सहायता से अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे. अब हम लोग देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4. कि 30% बेंजीन दिया हुआ है और मास CCl4 के साथ हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो पहले हम लोग देखेंगे 30% मीन्स 30% मीन्स 30 ग्राम बेंजीन and 70 gram CCl4. That is, W is equal to 30 and capital W is equal to 70. Again, molecular mass of benzene is equal to 12 into 1 into 6, 78, and molecular mass of CCl4 is equal to 12 plus 142, 154. Therefore, N is equal to W by M. Here, W is equal to 30 gram and M is equal to 78. Therefore, 30 by 78. After calculation, we get 0.384. And capital N is equal to capital W by capital M. Capital W is 70 and mass is 154. After calculation, we get 0.454. 30% means 30 gram of benzene and 70 gram of CCl4.
ये दो दिए हुए हैं क्योंकि CCl4 भी है और बेंजीन भी है और 30% बेंजीन दिया हुआ है, तो रेस्ट 100 से ये हम 30 घटाएंगे तो वी गेट 70 ग्राम ऑफ CCl4. Again, molecular mass of benzene is equal to 78 and molecular mass carbon tetrachloride is equal to 144. Now N is equal to W upon M. Here W is equal to 30 and M is equal to 78. Therefore, W means 30 by 78 is equal to 0.384 and capital N is equal to W by M is equal to 70 by 154 equal to 0.454. Now N plus N is equal to 0.384 plus 0.454. 8 8 5 13 और 4 3 7 4 4 8 5 8 13 1 4 5 8. अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाले बेंजीन का और CCl4 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू N upon N plus N, दैट इज इसका निकला हुआ था 0.348 डिवाइडेड बाई 0.838. फाइनली वी गेट 0.458. सिमिलरली mole fraction of CCl4 is equal to capital N divided by 0.834 is equal to 0.454 divided by 0.384. After calculation, pi CaCl4 is equal to 0.541. तो मोल फ्रैक्शन हमने CCl4 का निकाल लिया और मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल है। दोनों को अगर जोड़ते हैं 0.458 और 0.541, ये आता है 0.999। इसमें पहले हमने स्मॉल n का 0.348 और CCl4 का 454, तब दोनों को अगर जोड़े थे N plus N को तो हमें मिला था 0.838। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर N upon N plus N इक्वल टू 0.348 डिवाइडेड बाई 0.838 is equal to 0.458. Similarly, mole fraction of CCl4 is equal to N upon 0.834, यानी 0.454 divided by 0.384. इसलिए chi CCl4 is equal to 0.541. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, formula is C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. यह NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन 2.1 है। दिया हुआ है इसमें 20% इथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स 20% मीन्स 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल
and 80 gram water. That is W is equal to 20 gram and capital W is equal to 80 gram. Molecular mass of ethylene glycol is equal to 62. C2H6O2. 12 multiplied by 2 plus 1 into 6 plus 16 into 2 is equal to 62. And molecular mass of water H2O is equal to 80. Therefore, N is equal to W by M, means W 20 ग्राम है, 20 divided by molecular mass 62 gives rise to 0.322. Similarly, capital N is equal to capital W by capital M, यानी 80 divided by 80 is equal to 4.44. Therefore N plus N is equal to 0.322 plus 4.444 means 6, 7. ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 2.1 इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास, यानी 20% मीन्स 20 ग्राम दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकॉल और इस 80 ग्राम वाटर दिया हुआ है. Therefore W is equal to 20 by 20 ग्राम एंड कैपिटल W is equal to 80 ग्राम. अब मोलिकुलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हमने निकाला 62 और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर is equal to 80. Now N is equal to W upon M. 20 upon 62 gives rise to 0.322 on calculation. Similarly, N is equal to capital N is equal to capital W divided by capital M is equal to 80 by 18, यानी 4.444. Therefore, N plus N is equal to 322 plus 4.44 is equal to 4.766. अब इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाले. मोल फ्रैक्शन of ethylene glycol is equal to N upon N plus N, that is 0.322 divided by 0.322 4.444 667 4.766. After calculation, we get 0.068. Similarly, mole fraction of water is equal to capital N divided by N plus N. That is 4.444 divided by 4.766. Finally, we get 0.93. अब दोनों को ऐड करते हैं. 0.068 932 0001.
mole fraction of ethylene glycol is equal to small n divided by n plus n, that is equal to 0.322 upon 4.766. After calculation we get 0.068. Similarly, mole fraction of water is equal to n upon n plus n, the 4.444 divided by 4.766. After calculation we get 0.932. अब दोनों को जोड़ते हैं तो यह सॉल्यूशन एक का हो जाता है 1.000. ये 0.999 भी आता है और 1.000 भी हम लोग ले सकते हैं. अब हम लोग नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में जानकारी लेंगे. इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम घुल सकता है, उसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करता है. तो क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कि दिए हुए सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में अगर सॉलिड घुल जाए तो उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड. जो दिया हुआ है लिक्विड उसमें ये जरूरी नहीं है कि सभी सॉलिड घुल सकते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, यूरिया है इत्यादि, ये सब आसानी पूर्वक वाटर में घुल जाते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं. परंतु नेफ्थलीन, एंथ्रासीन तथा डाइक्लोरोबेंजीन ये सब जल में अघुलनशील होते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. दे आर रेडली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो दिमाग में हटा लें हम लोग कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Thus, we can easily say that a solute dissolved in a solvent where their intermolecular interaction are similar. अब इसे हम लोग आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट जिनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और सिमिलर यानी उनका सामान्य हो सॉल्वेंट के साथ, तो उसे हम लोग कहेंगे वो आसानी पूर्वक सॉल्युबल हो जाते हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक डिसॉल्व लाइक. ये आसानी पूर्वक हम कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी दिए हुए सॉल्यूट, दिए हुए सॉल्वेंट अगर एक दूसरे का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वे सॉल्युबल निश्चित रूप से होंगे. अब इसके फैक्टर्स हैं कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, इसका टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके बारे में अब हम लोग जानें. अब इसके फैक्टर्स के बारे में जानें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड. पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. एनी कंपाउंड दैट इज पोलर कंपाउंड हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व लाइक NaCl, KCl, BaCl2 etc. in water. We know that the water has highest dielectric constant, hence it can easily dissolve polar compounds. Similarly, other polar solvents are liquid ammonia, liquid H2S, liquid SO2 etc. Non-polar compound, that is covalent or organic compound like naphthalene, anthracene etc. are readily dissolved in organic solvent like benzene. Ionic compound यानी polar compound such as जैसे NaCl, KCl, BaCl2 etc. are dissolved in polar solvent like water. ये आसानी पूर्वक वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. हम जानते हैं कि वी नो दैट वाटर हैज हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इज बेस्ट पोलर सॉल्वेंट, यानी इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होता है, इसलिए ये बेस्ट पोलर सॉल्वेंट होते हैं. अदर पोलर सॉल्वेंट्स आर लिक्विड अमोनिया. अदर जो पोलर सॉल्वेंट हैं वे लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड SO2, लिक्विड H2S etc. Similarly, non-polar compounds, that is
covalent or organic compound like naphthalene, anthracene are readily dissolved in non-polar solvent like benzene, chloroform, etc. अब इनका दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर घटाने पर इनके रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें जाने कि जब मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स राइज टू सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा एच सॉल्व मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। अर्थात फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी solute plus solvent give rise to solution and energy is also released, that is delta H sol can't be greater than 0, that is smaller than 0। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज लिक्विड्स और सॉलिड्स जो दिए रहते हुए हाईली इनकम्पेरेबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इनका कोई भी प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है ऑन सॉल्युबिलिटी, किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, इसके ऊपर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड्स, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रेशर हैज प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन, और यही कारण है कि प्रेशर का उस रिएक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमें देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, कि बहुत सारा ऐसे गैस है जो कि लिक्विड में लाइक वाटर में आसानी पूर्वक घुल जाते हैं, जैसे CO2 वाटर में आसानी पूर्वक घुलकर वो सोडा वाटर का फॉर्मेशन करता है, या एरेटेड वाटर यानी जल से भरे हुए गैस में भी ये क्या होते हैं, लिक्विड आसानी पूर्वक घुल जाते हैं, लिक्विड में गैस घुल जाते हैं। बहुत से ऐसे गैस हैं जैसे ऑक्सीजन, ये वाटर के साथ आसानी पूर्वक घुल जाते हैं और घुलकर ये हमें नदी, नाला, समुद्र इत्यादि में उपस्थित जंतुओं को सर्वाइवल के रूप में ले आते हैं। अब इसे हम लोग इंग्लिश में देखें कि गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, सोडा वाटर एंड एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन्स CO2 डिजॉल्व इन वाटर, क्या करते हैं कि CO2 को वाटर में यानी जल में डिजॉल्व करते हैं अंडर हायर प्रेशर। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब उस बोतल को खोलते हैं तो हिस करके वो गैस निकलती है, वो गैस जो होती है वो CO2 गैस होती है। ये CO2 डिजॉल्व इन वाटर अंडर हायर प्रेशर, हायर प्रेशर में उसे करके उसे कॉर्क से सील कर दिया जाता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन आसानी पूर्वक जल में घुलकर ये परमिट करता है द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक जीव जंतु इन रिवर्स, नदी, लेक, झील और ओशंस यानी समुद्र में। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। अब ये निम्न फैक्टर्स में पहला, नेचर ऑफ द गैस, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत ही कम घुलनशील होता है। द गैसेज लाइक CO2, अमोनिया, HCl आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
क्योंकि ये जो है आसानी पूर्वक वाटर के साथ रिएक्शन करके यानी केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। द मोस्ट soluble gases आर those which chemically react with liquid solvent। मोस्ट soluble gases वो वैसे होते हैं जो आसानी पूर्वक रिएक्शन में लिक्विड अमोनिया में घुल जाते हैं, यानी लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, N2, CO2 it is greater in ethanol rather than in water। यानी ये इथेनॉल में आसानी पूर्वक घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, यानी एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर। सॉल्युबिलिटी अमोनिया H2S ETC इज ग्रेटर इन वाटर देन इन इथेनॉल, यानी अमोनिया H2S HCl इत्यादि ये वाटर के साथ आसानी पूर्वक रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात सॉल्युबल हो जाते हैं रेदर देन इथेनॉल। इसकी तुलना इथेनॉल की तुलना में, और उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट होते हैं। अब इसका तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सॉल्युबिलिटी की प्रभाव क्या पड़ती है। इसमें कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं इन गैस की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। यही हेनरी साहब ने ही बताया था, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले टेम्परेचर का प्रभाव देखें कि व्हेन ए गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट हीट इज लिबरेटेड। जैसे हम लोग गैस को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में तो हीट लिबरेट कर जाता है, दैट इज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक, यानी दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स राइज टू सॉल्यूशन प्लस हीट। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं द रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। दिस डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो कि गैस की सॉल्युबिलिटी को घटा देता है। यह ली चैटरियल प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। इट इज इन अकॉर्डिंग्स विद ली चैटरियल प्रिंसिपल। The solubility of a gas in liquid increases with decrease in temperature। उसी तरह से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं solubility of gas in liquid क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। This makes the aquatic species more comfortable in cold, जिसके कारण जीव जंतु कोल्ड वाटर में आसानी पूर्वक सांस लेने की क्रिया को दर्शाता है rather than in warm water, यानी वार्म वाटर में ये इनका रिएक्शन काफ़ी कम होता है ये, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होती है। इनके एक्सेप्शन हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इनर्ट गैस लाइक हीलियम नियॉन ETC इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल एसीटोन ETC increases slightly with the increase in temperature, कि ये एक्सेप्शन में आते हैं कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन इनर्ट गैस जैसे हीलियम नियन इत्यादि आसानी पूर्वक नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी इथेनॉल एसीटोन में घुल जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे इसमें थोड़ी सी टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, इसके कारण ये थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी को दर्शाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज, कि गैस लिक्विड में आसानी पूर्वक जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं। यही हेनरी साहब ने बताया था। द साइंटिस्ट हेनरी स्टडीज क्वांटिटेटिवली
क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमें जानकारी दी थी, जिसे हम लोग विच इज नोन एज हेनरी लॉ। अब हम लोग इसके आगे हेनरी लॉ पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी दी और इसके ऊपर कंसर्निंग न्यूमेरिकल्स भी बताया। उसके बाद हम लोग पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।